All right. Make your presentation, Tarun. Hello, Tarun. A screen is visible, ma'am. Not yet. Share screen. नहीं हो पा रहा, मैं बार बार कट जा रहा है. सॉरी मैम. Yes. Yes, Tarun. We can see your screen. Yes. The rest of you, please mute yourself. Mute. Yes, Tarun. Yes. Okay. Biography of Pandit Jawaharlal Nehru. All right. Next, the policy of being too Cautious. The policy of being too cautious. सतर्क रहना. जो हमेशा सतर्क रहता cautious है. is the great risk of the Of all. of all. बहुत ज्यादा सचेत सतर्क भी एक तरह का. Tarun, you have to explain the slide, no? Yes, ma'am. Next, ma'am, personal details. Born on 14th November 1880, Allahabad, Northwestern Province, British India. Now that is in Uttar Pradesh. Born in privileged household of Motilal Nehru, a successful lawyer in Allahabad. He is a Kashmiri Pandit, a schooling private tutors in intelligently later Initially. at Havra. Hello. Initially. मतलब Initially, शुरुआती दौर पे. Initially. initially हाँ. later at Havra in England. Graduate from Later at Harrow. Trinity. Later at Harrow in England. Later at Harrow in England. Graduate from Trinity College, Cambridge in 1910. Studied law at Inner Temple, London. Died on 27th May 1964, age of 74, in New Delhi, India. Okay. Now, Family details. hello. जो तुम वापस आओ Yes. slide पे. Go back on the slide. Studies नहीं, studied. All will be in the past tense. Studied law at. Died on. Okay, ma'am. Graduated from. ठीक है. And he was a Kashmiri Brahmin. He is Okay, not. ma'am. He is no more, no? Yeah. चलो. Family details. Cause of death is heart attack, resting palace, Santi. Place. 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 पैलेस कुछ और Resting होता है. place. पैलेस का मतलब महल होता है. नॉर्मली प्लेस के बदले लोग पैलेस बोलते हैं, विच इज रॉन्ग. प्लेस जगह एंड पैलेस महल. तो यहाँ पर रेस्टिंग प्लेस. ठीक है. उनकी समाधि जहाँ पर है शांतिवन. Political party Indian National Congress. Children Indira Gandhi. Father Motilal Nehru. Mother Swarup Rani Nehru. Occupation barrister, writer and politician. Award Bharat Ratna 1955. Okay. Other name Pandit Chacha and the Peace of Man. Peace of Man is given by Lal Bahadur Shastri. Next, the photo of the Jawaharlal Nehru family in 1927. Educational details. His primary education at the home by the private.
Nehru is interested in the science and therapy. Hmm. His institutional schools, his primary education at the home by the private tutor Nehru is interested into. Sorry, madam. Here he won the prize of the academic merit. Here educational details. Nehru went to the Trinity College, Cambridge, 1907 and the graduate honors degree in the natural science in 1910. Hmm. Then he moved to London and studied law at Inner Temple. Then he returned India in August 1912. He enrolled himself as the advocate of Allahabad High Court, but he had little interest in his profession. Picture of the Nehru at the Allahabad High Court. Hmm. Next, Chacha Nehru. Nehru loves for the children earned him and the title of Chacha Nehru. We celebrate Children's Day as remember the anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, leader of the Congress. He developed an interest in Indian politics during his time in the Britain and university. Then he joined the Indian National Congress and lead the main role of the independence of India. Last, Nehru became the first Prime Minister of the India on 15 August 1947. The picture of Lord Mountbatten swear in the Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister free India at the ceremony held on the 8 a.m. first on the August 1947. Hmm. Yes, ma'am. आप हाँ, आपका एफर्ट ठीक है, इट्स गुड दैट यू हैव मेड एन एफर्ट। कोशिश कीजिएगा जितने वर्ड्स आप डाले हैं, जितने कंटेंट डाले हैं, उसको आप समझ के डालें। जितने सारे वर्ड्स हैं, अगर कोई पूछ सकता है, जब हमने अभी पूछा नहीं आपको इसलिए कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन जब आप स्लाइड बनाएं तो कोई भी वर्ड आप डालते हैं तो आप लेते हैं उसको इंटरनेट से, तो उसकी मीनिंग जरूर जान लें। तो एक बार Okay, आप ma'am. कुछ होमवर्क अपना कर लीजिएगा, जितने भी वर्ड आपने लिखा है उसमें से एक वर्ड आप निकालिए जो उसको जो जो आपको नहीं आता है और समझ नहीं पाए हैं आप। नेहरू वॉज इंटरेस्टेड इन, कौन सा वर्ड था वो निकालिए उसको आप। किस चीज में वो इंटरेस्टेड Natural थे? नेचुरल साइंसेस। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजन, he was not interested in any kind of meditation or any kind of running away from society, running away from problem, but he was basically interested in solving people's problem. Otherwise ठीक है, it's good. And बाकी लोग क्यों नहीं, why aren't you why haven't you switched on your camera? हाँ, yes, hello, anybody else would like to make a presentation? रोहित परमिशन मांग रहा है. Screen is visible now. Okay, yes, your screen is not visible, but then you need to share screen. Yes, Rohit. Visible now. Hello. Visual. Yes, it is. Yes, Rohit, you may continue.
Screen is visible. No, screen was visible. Yes, visible. No. No. हाँ, स्क्रीन तो दिख रहा है. Yeah, I can see the screen. Yes, this is all about Pandit Jawaharlal Nehru. The screen is visible. Was on 14 November 1889. Rohit, your voice is not clear. Hello. I have network from and leader of the Indian independence movement. He was also one of the prominent Okay. Yes, Rohit. Jawaharlal Nehru was the eldest son of Motilal Nehru out of 4 children, and 2 of one were girls. He completed his early education until the age of 14 at the home under private tutors. At the age of 15, he went to England at Harrow School. Harrow School should be in capital letters, Rohit. This one. After 2 years, he तो जिन लोगों ने भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया है वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में. और बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू रोहित के साथ प्रॉब्लम हो गया. ही कुड नॉट मेक द प्रेजेंटेशन, बट एनीवेज आप कोशिश जरूर कीजिएगा बनाने का. 2-3 चीजें पीपीटी में जब बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा. सबसे पहली बात, जो कंटेंट आप ले रहे हैं, पिक्चर्स जो ले रहे हैं उसमें कोई लेना देना नहीं. पिक्चर ले रहे हैं ठीक है. पीपीटी का मतलब ही होता है पिक्चोरियल. इट हैज टू बी फुल ऑफ पिक्चर्स. कंटेंट कम रखिएगा, बुलेट्स में रखिएगा. एक साइड में 3-4 बुलेट्स डाल के रखिएगा. एंड कोशिश कीजिएगा जितने भी आप कंटेंट उठा रहे हैं वो आपके ओन वर्ड्स में होने चाहिए. और आपने कोई भी ऐसा वर्ड लिखा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको डिक्शनरी देख लीजिए, समझ लीजिए. नहीं तो क्या होगा, हम बैठ के यहाँ पर से अब देख रहे हैं तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं. इसका मतलब बताइए. तो आपने बस खाना पूर्ति कर दी है, कंटेंट लेके कर कॉपी पेस्ट कर दिए, तो फिर आपने सीखा क्या? पीपीटी क्यों बनवाते हैं हम लोग? ताकि कुछ आप एक्स्ट्रा वर्क करें, सेल्फ वर्क कुछ आपका होगा. खुद से आप कर रहे हैं कुछ काम, कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं. वो तो दिख ही रहा है. आप इमेजेस से पिक्चर्स ले रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं. बस थोड़ा सा और कुछ करना है. उन शब्दों को जो आपको समझ में नहीं आया है उनको आपको समझ लेना है, ताकि कहीं से कोई पूछे तो फिर वो आप बता सकें कि हाँ इसका मतलब ये, और मैंने सोच समझ के मैंने इसको बनाया है और मुझे पता है कि इसका मतलब क्या होता है. तो जब भी आप बनाए पीपीटी, यू शुड नो द मीनिंग. अब लोग देखो, देखिए पिक्चर देखते हैं और स्लाइड देख करके बोलना शुरू करते हैं. पढ़ते नहीं हम लोग. जब हम पीपीटी बनाते हैं तो बस देखा, पिक्चर से एक्सप्लेन कर दिया. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग ड्रामा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है. ये मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्ले है, ड्रामा है, जिसको लिखा है पेंड बाय विलियम शेक्सपियर.
What is the name of the drama, of the play? Merchant of Venice. The Merchant of Venice The Merchant of Venice. by William Shakespeare. What is the meaning of merchant? व्यापारी। कहाँ का व्यापारी? कहाँ का व्यापारी था? Venice. Venice. वेनिस का। वेनिस कहाँ पर है? पैलेस का नाम है। पैलेस का नाम है। प्लेस, किसी प्लेस का नाम है, जगह का नाम है। विकिपीडिया पे देख लीजिएगा वेनिस कहाँ है, क्या है, कुछ रिसर्च वर्क करिए। लिटरेचर पढ़ने वाले तो बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने की आदत लग जाती है, ये बात तो जरूर है। जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो यू स्टार्ट रीडिंग। तो वी आर स्टार्टिंग दिस विद द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पवन कुमार, अभी भी आपका कैमरा ऑन नहीं है। और आपका नेटवर्क इशू भी नहीं है, नहीं तो आप कुछ हमको जवाब देते कि नेटवर्क इशू है, तो वो तो है नहीं, तो आप सीधे निकल जाओ भाई। आई वी कैन नॉट हेल्प यू। जब हम एक बार बोल दिए आप लोगों को, डिसिप्लिन में रहा करिए। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है, written by famous playwright and writer विलियम शेक्सपियर। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि कुछ आपको आइडिया मिल जाए कि ये क्या है, किस चीज के बारे में। डू यू हैव एन आइडिया ये किस चीज के बारे में, थीम क्या है इस प्ले का, इस कहानी का, इस ड्रामा का, इस प्ले का क्या है? पवन कुमार, आपको हम अलाउ कर दिए हैं, अगर आप कैमरा ऑन रखते हैं तो, नहीं तो मेरा कोई लेने देना नहीं है। डिसिप्लिन में नहीं है तो हम आपके कोई नहीं है। Now sharing the screen with you. The Merchant of Venice. इसमें आप कुछ लोगों के चेहरे देख रहे हैं जो जब इसका फिल्म बना था, कैरेक्टर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। आज हम लोग कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टर्स को जान लेना ही सोचिए कि बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो जब बीच में आप देख रहे हैं, इसमें 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, और इनके नेम्स बड़े अजीबोगरीब नेम्स हैं। आप नाम जान लीजिएगा, लोगों को भी जान लीजिएगा। तो पहला जो नाम आ रहा है सामने, जो कि इस पूरी स्टोरी इस इंसान के इर्द गिर्द घूमी है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड वन मैन, वन पर्सन, जिसका नाम था शाइलॉक। जो बीच में जो देख रहे हैं, जो रेड कैप पहने, आप देख रहे हैं आप इसको, जो 3 यंग Yes, ma'am. एंड Yes, 1 ma'am. इज ओल्ड। Yes, ma'am. ये रेड कैप पहने हुए, इनका नाम है शाइलॉक। Shylock. शाइलॉक। Write down the name, characters, Merchant of Venice। पहला कैरेक्टर दिखा रहे हैं, शाइलॉक। He was a very famous merchant of Venice. इनके बारे में बाद में बताएंगे, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। शाइलॉक एक मनी लेंडर था। मनी लेंडर समझते हैं ना, सूद पे पैसे देता था
और काफी हैवी था उनका सूद। मनी लेंडर था, लोगों को पैसे देता था, लेकिन विकेट था, एक अच्छा इंसान नहीं था। आप शक्ल देख रहे हैं, उसको देखते ही लग रहा है कि थोड़ा एंग्री है, थोड़ा प्रॉब्लम्स है। ये शाइलॉक है, जबकि ये यहाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस का बहुत लोग कहते हैं कि द मेन कैरेक्टर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक है, जो कि एक विलेन है, लेकिन वो इतना फेमस हुआ अपने कैरेक्टर से, विलियम शेक्सपियर ने इतना फेमस किया कि जो जब नाम आता है मर्चेंट ऑफ वेनिस तो एक शक्ल और एक नाम सबसे पहले आता है, वो शाइलॉक का। और ये ही वॉज अ वेरी रिच मर्चेंट, बहुत रिच मर्चेंट था, उधार पे पैसे देता था सबको, और काफी हेवी इंटरेस्ट हुआ करता था, इंटरेस्ट काफी हैवी था। रिच है तो भी, पुअर है तो भी, लेकिन हाँ पैसे मिल जाते थे। कोई भी उसके बाद आता था तो हाँ, he used to lend money, because he was a money lender. On return, the interest was always very heavy. इनकी उम्र आप जान देख ही रहे हैं, he is an old man, old rich man, जिसकी एक डॉटर है, जिसके बारे में जिक्र बाद में आएगा, लेकिन पहले शाइलॉक। और ये जूस थे, क्रिश्चियन एंड जूस दोनों कम्युनिटी में पड़ती नहीं थी। क्रिश्चियन वो लोग जो कि जीसस क्राइस्ट को मानने वाले, समझने वाले, जानने वाले, उनको अपना गॉड मानने वाले, जीसस क्राइस्ट, उनके फॉलोअर। और जूस दूसरी तरफ, ये वही लोग थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाया था। अब साफ बात है कि वाई दे आर हेटेड। अब क्रिश्चियंस लोग उनको हेट करते थे, चाहे तुम जो भी हो, तुम अगर जूस हो तो तुम सही आदमी नहीं हो, इसलिए कि तुमने जीसस क्राइस्ट पर डाउट किया और उनको सूली पे चढ़ाया। तो जूस की अलग कम्युनिटी, क्रिश्चियंस की अलग कम्युनिटी। तो एक तो सबसे पहली बात तो उसको क्रिश्चियंस लोग लाइक नहीं करते थे, प्ले में जितने भी क्रिश्चियंस थे इनको लाइक नहीं करते। फॉर वन रीजन he was hated by the Christians for two reasons. One, that he was a Jew, and secondly he was a very wicked merchant, जो कि कोई सिंपथी नहीं था, कोई दया नाम की चीज नहीं थी, और मनी लेंडर था, लेकिन बहुत हैवी इंटरेस्ट देता था। तो इन दो चीजों की वजह से शाइलॉक वाज हेटेड। और ये जो रेड कैप का राज है, रेड कैप, जितने भी जूस सब रेड कैप पहनते थे। दूर से दिख जाते थे कि रेड कैप मतलब जूस है। वो लोग अपनी अलग एक पहचान बना ली थी उन लोगों ने रेड कैप पहन करके, ताकि दूर से भी नजर आ जाए कि कोई रेड कैप वाला है तो जूस है। ताकि किसी भी तरह की परेशानी में अगर कोई उन पर कोई हमला बोल देता है, somebody who attacks them, कोई उन पर अटैक कर रहा है, हमला बोल देता है, तो सारे जितने भी लाल कैप वाले रेड कैप वाले सब इकट्ठा हो जाते थे। तो उनकी ये पहचान थी, दे यूज्ड टू वेयर रेड कैप्स। सड़क पर जब भी निकले, ऑन द रोड्स, रेड कैप होना जरूरी है, उनकी पहचान थी। हाँ, मैं जूइश हूँ, इसकी पहचान थी, वो रेड कैप पहनते थे। तो जब कभी फोटो आप देखेंगे रेड कैप में, तो समझ जाइएगा ये कोई भी जू होगा। और कारण बता दिया, वाई दे वर नॉट लाइक, बिकॉज दे हैड क्रूसिफाइड जीसस क्राइस्ट।
जीसस क्राइस्ट को इन लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया था। तो किसी भी क्रिश्चियन के लिए ये बहुत ही दिल पे आने वाली बात होती है, और माफ नहीं कर सकते वो लोग, इसलिए कि वो उनके मसीहा को, उनके गुरु को के साथ ऐसा व्यवहार किया था। अब इसके बगल में जो देख रहे हैं, दिस गर्ल, ये शाइलॉक की बेटी है, वेरी ब्यूटीफुल यंग वुमन। शाइलॉक की बेटी है। एक्सक्यूज मी, शी इज नॉट शाइलॉक्स डॉटर, शी इज पोर्शिया। कैरेक्टर्स जो है सामने लिखिए, इनकी बेटी अलग है, वो बाद में आएगा। दिस गर्ल्स नेम इज पोर्शिया, Portia. लेट मी सी इफ आई कैन, पोर्शिया। नेम्स आप लिखते जाइएगा, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेम्स। पहला कैरेक्टर दिखाया हमने शाइलॉक, द सेकंड कैरेक्टर इज पोर्शिया। Portia is a very beautiful young woman. जो वेनिस बने रहती है, वेनिस के पास ही में रहती है, नॉट इन वेनिस बट नियर बाय। पोर्शिया बहुत अमीर, शी इज अ वेरी रिच young woman. Her father, हेलो मैम। let me conclude this. So Portia lives nearby Venice, पास में रहती है. She is a very rich young woman. Her father is very sick, old, बीमार हैं, old हैं, मदर नहीं उनकी है, और बहुत अमीर है. इनके फादर को एक ही चिंता थी, was worried before dying. वो सोचे मरने के पहले इसकी शादी एक अच्छे घर में एक अच्छे लड़के के साथ हो जाए, जो कि उसकी दौलत से नहीं बल्कि उससे प्यार करे. और बहुत सारे लोग आते थे, जो कि इसलिए कि बहुत वो अमीर थी, बहुत खूबसूरत भी थी. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड शी वॉज वेरी रिच. So there were a lot of people, young boys, young bachelors who wanted to marry her. So in the story you will know that the character of Portia, a young beautiful woman. मैम एक वजह से मैं रवि शनि सर का क्लास है। मैं खत्म कर रही हूँ ना, ओके अभी कैरेक्टर समझा देते हैं आपको. ओके ये वो लड़का है जिसका नाम है बसानियो. नेम्स आप लिख लीजिए सिर्फ आज. बसानियो. बसानियो इज a person who loves Portia. ठीक है, ये बसानियो है, and Bassanio is in love with Portia. Portia also loves Bassanio. तीन कैरेक्टर, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ये एंटोनियो है. ये तो था एंटोनियो का. एंटोनियो एंटोनियो एक मिडिल एजेड इंसान है, 40 के पार का है. शादी उन्होंने करी नहीं है, बैचलर है. और ये भी बहुत बड़ा मर्चेंट है, बहुत अमीर मर्चेंट है. और ये तीनों जो आपने देखा, एंटोनियो, बसानियो और पोर्शिया,
ये सब के सब क्रिश्चियंस हैं और ये बिल्कुल शार्लॉक को लाइक नहीं करते। So today we discuss the characters: Shylock, a rich merchant; Portia, a rich young girl; Bassanio, a person who loves Portia; and Antonio, a rich merchant in Venice. All these three are very good friends. Who hates Shylock? So that's all for today, and we'll discuss later on what happens to them